جس کے پاس اربوں خربوں کی طاقت، اور ایک طرف ایک بنکر کا بیٹا، ایک غریب ایک مظلوم کا بیٹا، جو میدان میں آج چیخ چیخ کر دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر یہ کہہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہم آج کمزور ضرور ہیں، لیکن اگر 5 تاریخ کو صبح 7 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہر سماج کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج نے بھی حکمت اپنا لیا اور ہمیں اپنا قیمتی ووٹ دے دیا، تو اسی وقت ہم سدھاکر سنگھ کے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ ووٹ ہی سے طاقت بنتی ہے۔ کل ووٹ نہیں ملا تھا، لاپتہ تھے، آج ووٹ کی درکار ہے۔ آئیے علامہ رئیس قریشی قاسمی صاحب سے میں کہوں گا کہ تشریف لائیں، زوردار تالیاں۔ ڈاکٹر ایوب زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے ڈاکٹر ایوب زندہ باد، پیس پارٹی زندہ باد، کاج کا گلاس زندہ باد، ڈاکٹر ایوب زندہ باد، اپنی قیادت زندہ باد، سب کی حفاظت زندہ باد، اپنی قیادت زندہ باد، سب کی حفاظت زندہ باد، روسی کی عوام زندہ باد، مداپور کی عوام زندہ باد۔ مائک پر علامہ رئیس قریشی قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیونکہ وقت عشاء کی اذان کا دھیرے دھیرے نزدیک آ رہا ہے، میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہمارے ساتھی دائیں بائیں بیٹھے ان سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ کا وقت لے کے آ جائیں۔ ہمارے بیچ میں ہمارے پارٹی کے راشٹری مہاسچو علامہ شفقت تقی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایوب شفقت تقی زندہ باد، زندہ باد، ڈاکٹر ایوب شفقت تقی زندہ باد، زندہ باد، علامہ شفقت تقی سنگھرش کرو، تمہارے ساتھ ہیں، علامہ شفقت تقی سنگھرش کرو، تمہارے ساتھ ہیں، علامہ شفقت تقی سنگھرش کرو، تمہارے ساتھ ہیں۔ میں گزارش کروں گا جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دوستو ہم آپ کے بیچ کے نہیں ہیں، میں بلند شہر کا رہنے والا ہوں۔ بلند شہر کا نام سنے ہوں گے، آپ کے گاؤں سے 700-800 کلومیٹر دور پڑتا ہے۔ آج آپ کے دیار میں آپ کے آنگن میں آئے ہیں تو آپ سے صرف بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں 10 منٹ کا وقت لے کے آؤ۔ اگر ہم 800 کلومیٹر کی دوری سے چل کے آپ کے گاؤں میں آ سکتے ہیں تو آپ 10 قدم چل کے ہمارے بیچ میں آ سکتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنی بات کہیں گے آپ کے بیچ سے چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو، یاد رکھیے گا کہ سیاہ رات کا منظر بدلنے والا ہے، یہ یاد رکھ لینا، سیاہ رات کا منظر بدلنے والا ہے، سحر قریب ہے، سورج نکلنے والا ہے، اور اب فلک جسے جکڑ کے رکھا تھا تو نے زنجیروں میں، وہی میرا پیر تیرا سر کچلنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا موقع آ گیا ہے، آج کی تاریخ میں، آج پیس پارٹی میدان میں ہے، ڈاکٹر ایوب میدان میں ہے، علماء اکرام میدان میں ہے، نیتا میدان میں ہے۔ آج میدان میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، آپ کی بستی کا 300 روپے کا کرتا پاجامہ پہننے والا وہ سماج وادی پارٹی کا دلال نیتا جو اپنے آپ کو سپا کا بڑا نیتا بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو سماج وادی کا نیتا کہتا ہے، اس دلال سے پوچھ کے دیکھو، تیری سماج وادی کی سرکار تھی، کوسی کلا جلایا جا رہا تھا، متھرا کو جلایا جا رہا تھا، علی گڑھ کو جلایا جا رہا تھا، سنبھل کو جلایا جا رہا تھا، مراد آباد کو جلایا جا رہا تھا، مظفر نگر کو جلایا جا رہا تھا، تیرا ابو اکھلیش یادو نہیں بول رہا تھا، تیرے ابا کی سرکار سماج وادی کی سرکار نہیں بول رہی تھی۔ آج کس دم سے، کس منہ سے تم سماج وادی کے لوگ مسلم سماج سے ووٹ مانگنے آئے ہو؟ تمہاری اوقات ہے، تمہاری حیثیت ہے، تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ کیا جواب لوگے؟ اس زمین پہ ہمارا قتل عام کیا جاتا ہے، ہائے رے مسلمان، افسوس ہوتا ہے تجھ کو مسلمان کہتے میں، مسلمان ہے، آج تیرے سامنے تیرا لہو بہ رہا ہے، آج تیرے سامنے مسجدوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مدرسوں کو جلایا جا رہا ہے، علماء کی داڑھی کو نوچا جا رہا ہے، علماء کی ٹوپی کو کھینچا جا رہا ہے، میدان میں جا کے دیکھ لو، پلین میں مارا جا رہا ہے، پلین میں مارا جا رہا ہے، سفر میں مارا جا رہا ہے، جہاں چاہے قتل عام کر دیا جا رہا ہے، نہ مسجد میں محفوظ ہے، نہ مدرسے میں محفوظ ہے، نہ سفر میں محفوظ ہے۔ آخر کون ہے ذمہ دار؟ وہی سماج وادی پارٹی کا نیتا ذمہ دار ہے، وہی سائیکل کے لیے ووٹ مانگنے والا ذمہ دار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جب اپنی قیادت
जाती है तो वो दलाल मुसलमान जो साइकिल पे बैठा है, वो दलाल मुसलमान जो कांग्रेस में बैठा है, वो दलाल मुसलमान जो हाथी पे बैठा है, वो कहता है ये बीजेपी को जिताने आए हैं, ये बीजेपी के एजेंट है। अरे तेरा अब्बा इंतकाल कर गया मुलायम सिंह यादव जी, उससे नहीं पूछा था कि जब एनआरसी का मसौदा तैयार किया गया लोकसभा में, इसी समाजवादी पार्टी के सारे सांसद निकल के बाहर चले गए थे और समर्थन कर दिया था खामोशी के साथ, और एनआरसी का मसौदा पास हो गया। कौन कर रहा था? उनको वो लोग कर रहे थे कि जिनको हमने अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनके हाथों में हमने अपनी जिम्मेदारी दी थी कि मेरे बच्चों की हिफाजत होगी, मेरे आलिमों की हिफाजत होगी, मेरे मस्जिदों की हिफाजत होगी। उन्हीं लोगों को हमने वोट दिया था, उन्हीं को सपोर्ट किया था, उन्हीं की जिंदाबाद लगाए थे। जरा याद करके देखो, इसी प्रदेश में 2012 में पूरे बहुमत की सरकार बनी थी, मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, और इसी उत्तर प्रदेश में मई 2012 में सरकार बनती है, और 13 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में दंगा हो जाता है, मस्जिदें जलाई जाती है, मदरसे जलाए जाते हैं, आलिमों को मारा जाता है, मासूम बहन बेटियां जिनके खुले सर कभी खुले आसमान में नहीं देखे थे, हमारी इज्जत और आबरू को लूट लिया जाता है। सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में हाकिम कौन था? उत्तर प्रदेश का बादशाह कौन था? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? यही तेरा भाई अखिलेश भैया मुख्यमंत्री हुआ करता था। अरे मुसलमान जो साइकिल पे बैठा है और हिमायत मांग रहा है, ये साइकिल को वोट दे दो। याद रखना मुसलमानों, इस जमीन के बाद, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया आने वाली है, जिसे आखिरत की दुनिया कहा जाता है। याद रखने ना, अल्लाह जब पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने पेश नहीं होना है, मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है, कब्र में नहीं जाना है, रोज़े महशर में खड़ा नहीं होना है। क्या जवाब दोगे अपने रब को? अगर मेरे रब ने सवाल कर दिया, जाओ इस्लाम की तारीख को पढ़ के देखो। इस्लाम की तारीख ऐलान करती है, जब अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में डाला गया था, तो मौरिख ने लिखा है कि जमीन पे ऐसी आग जलाई गई थी कि न उससे पहले जमीन पे ऐसी आग जली है और न क़यामत तक जलाई जाएगी। ऐसी आग में अल्लाह के खलील को डाला गया। सारी दुनिया देख रही थी, फरिश्ते देख रहे थे, अल्लाह की ताकत देख रही थी, अल्लाह का निशान देख रहा था। और उसी वक्त पे एक छोटी सी चिड़िया दरिया पे जाती है, अपनी चोंच में एक बूंद पानी भर के लाती है और डालती है उस आग को बुझाने के लिए। जाती है, एक बूंद पानी भर के लाती है, उस आग को बुझाने के लिए उस पानी पे डाल देती है। अल्लाह की कुदरत मुस्कुराती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ फरिश्तों इस चिड़िया को पकड़ लो। इस चिड़िया से पूछो, ऐ चिड़िया जो जमीन पे इतनी विशाल आग लगी है, इतनी भयंकर आग लगी है, जो आसमान को छू रही है, इस तेरी एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया क्या खूबसूरत जवाब देती है, ऐ कुरान के पढ़ने वालों, ऐ अल्लाह के मानने वालों, ऐ नबी के मानने वालों, आओ ये बात बताने के लिए अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे, ये बात बताने के लिए मायावती नहीं आएगी, उनकी औकात नहीं है। अगर हम वोट न दें वो सत्ता में आ जाए, उनकी तो औकात नहीं है। हमारे वोट से सत्ता में आते हैं, हमारे वोट से हाकिम बनते हैं, हमारे वोट से मंत्री बनते हैं, हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर मुसलमान वोट नहीं देगा, अखिलेश यादव जी किसी अस्पताल में सरकारी नौकरी पाने की भी हैसियत आपकी नहीं है। हमारे वोट पे कमेंट करते हो, हमारे वोट पे भूलते हो। एक चिड़िया जिसको फरिश्ते पकड़ के पूछते हैं कि तेरी एक बूंद पानी से ये आग बुझ जाएगी, चिड़िया क्या खूबसूरत जवाब देती है। चिड़िया कहती है फरिश्तों से, मैं जानती हूँ मेरी एक बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल रोज़े क़यामत मैं अल्लाह के सामने जब पेश की जाऊंगी, मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ऐ चिड़िया तू जमीन पे मौजूद थी और मेरे खलील को आग में जलाया जा रहा था, तू मेरे खलील को बचाने के लिए क्या कर रही थी? तो चिड़िया कहती है, मैं अल्लाह के सामने सीना तान के कहूंगी, ऐ मेरे रब तूने जितनी ताकत मुझे दी थी, पूरी ताकत से मेरे खलील को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम बताओ क्या जवाब दोगे? बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज मथुरा में चल रहे हो, ओशिकला में चल रहे हो, मुरादाबाद में चल रहे हो, मुजफ्फरनगर में चल रहे हो, क्या जवाब दोगे मेरे भाई? अल्लाह ने पूछ लिया, मेरे महबूब मेरे लाडले को बेइज्जत किया जा रहा था, ऐ मुसलमान को मौजूद था, मेरे घर मेरी इबादत का मस्जिदों में आग लगाई जा रही थी, तू जमीन पे मौजूद था, मेरे आलिमों को लूटा जा रहा था, तू जमीन पे मौजूद था, तू क्या जवाब देगा मुसलमान? क्या वहाबी कहेगा मैं समाजवादी जिंदाबाद कर रहा था, मैं अखिलेश जिंदाबाद कर रहा था? याद
मिलने वाला नहीं है, वहाँ मुलायम सिंह मिलने वाला नहीं है। अगर मौत से इनकार है, अगर मौत से इनकार है, कब्र में जाने का इनकार है, अल्लाह के सामने खड़े होने का इनकार है, ऐ मुसलमान, तो फिर दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान होना पड़ेगा। याद रखना 76 साल हो गए, 76 साल हो गए। अरे पहचान लो मेरे दोस्तों, बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हमको ये कहने पड़ता है कि मुसलमानों, चमार भाइयों से सबक ले लो, राजभर भाइयों से सबक ले लो, निषाद भाइयों से सबक ले लो। जब ये कहना पड़ता है तो कसम खुदा की बड़ी शर्म लगती है। ये वो कौम है जो सारी दुनिया को सबक देने के लिए आई थी, ये वो कौम है जो सारी दुनिया को रास्ता बताने निकली थी, ये वो कौम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पे बादशाह बनाकर भेजा था, ये वो कौम है जो इस जमीन पे हक और इंसाफ की हुकूमत को कायम करने आई थी, ये वो कौम है जो जमीन पे हिंदू मुसलमान अगले पिछले गोरे काले सबको इंसाफ देने के लिए आई थी। लेकिन आज ये कौम हाथ में भीख का कटोरा लेकर भीख मांग रही है, भीख मांग रही है, और किसी दरवाजे से भीख मिलने को तैयार नहीं है। कभी यादव जी के दरवाजे पे यादव जी इंसाफ दे दो, कभी बसपा के दरवाजे पे मायावती जी इंसाफ दे दो, कभी कांग्रेस के दरवाजे पे ये कांग्रेसी इंसाफ दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो भाजपा के दरवाजे पे भी खड़े हैं कि शायद यहीं से कुछ मिल जाए। भूल गए हो फजाइले अमाल मस्जिद में रखी होगी, आओ उठाओ उसको खोल के देखो। मेरे नबी ने कहा, जिसका मफहूम बुजुर्गान दीन ने लिखा है, मांगने वाले से देने वाला हाथ अफजल हुआ करता है। तूने अपनी वोट देकर अखिलेश के हाथ को अफजल बना दिया, तूने अपनी वोट देकर मायावती के हाथ को अफजल बना दिया, तूने अपनी वोट देकर कांग्रेस के हाथ को अफजल बना दिया। अब भी जाग जा मुसलमान, अब भी जाग जा, तेरा वक्त है। आज अल्लाह ने मौका दिया है, वरना 2027 में चुनाव होता, लेकिन अल्लाह ने पत्थर डाल दिए और दारा सिंह चौहान का शिकार हो गया, वो बेचारा बीजेपी का शिकार हो गया। बताओ, उससे पूछो, पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उससे पूछो, अरे जब भाई मेरे तू पहले से यहाँ से एमएलए था, जब पहले से विधायक था, ये कौन सी अकलमंदी है कि विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। लेकिन भाजपा वालों ने शिकार कर लिया। बीजेपी के लोगों ने कहा था, आओ चौहान साहब भाजपा ज्वाइन कर लो, समाजवादी से इस्तीफा देकर आओ, हम आपको मंत्री बना देंगे। वो बेचारा इस्तीफा देके हंसते हंसते भाजपा में गया था। लेकिन भाजपाई बड़े शातिर हैं, भाजपाई बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने दारा सिंह चौहान को बुलाया, कहा तुमको मंत्री बनाएंगे, इस्तीफा हो गया, सदस्यता चली गई, और जब मंत्री बनाने की बारी आई तो नाम चलवा दिया अखबारों में, नाम चलवा दिया खबर में कि हाँ हम लोग मंत्रालय बनाने वाले हैं, नए नए लोगों को सब शामिल किया जाएगा। लेकिन जब दारा भैया की बारी आई तो कहा गया, दारा भैया हम आपको मंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन जाओ पहले घोसी से दोबारा विधायक बन के आओ तो मंत्री बनाया जाएगा। शिकार कर दिया, सियासत का शिकार कर दिया। और एक बात बता दूं, बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा, ये रईस कुरैशी जो बुलंदशहर पे चल के आया है आपके बीच में, मैं दावे के साथ कहता हूं, लिख लेना, जब दारा भैया अगर जीत के भी चले जाएंगे तो भाजपा वाले एक नई चाल चलेंगे, फिर वो कहेंगे मंत्री तो हम आपको बना देंगे, लेकिन 4 महीने बाद सांसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जाइए पहले अपने यहाँ से सांसद जिता के लाइए, तब आपको मंत्री बनाएंगे। मंत्रालय मिलने वाला नहीं है, जिस लालच में गए हैं। एक तरफ सुधाकर भैया हैं, क्या जानते नहीं है सुधाकर जी की हिस्ट्री को, क्या जानते नहीं इनके इतिहास को? मुसलमानों तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, तुमको पता ही कुछ नहीं है। कसम खुदा की इतने भोले हो, कोई भी तुम्हारा शिकार करके चला जाता है, कोई भी तुमको लूट के चला जाता है, इतने भोले हो। जब 2013 में मुजफ्फरनगर चल रहा था, पूरी विधानसभा के अंदर 71 मुसलमान एमएलए थे, 71 मुसलमान एमएलए सपा से थे, बसपा से थे, कांग्रेस से थे, 20 पार्टी के भी 5 मुस्लिम विधायकों में 3 मुस्लिम विधायक थे। लेकिन अकेला बोलने वाला कौन था? मुजफ्फरनगर में पढ़ने वालों के लिए बोलने वाला कौन था? कौन था जो बोल रहा था मुजफ्फरनगर में मरने वालों को, जो सीना तान के कह रहा था मेरा कबीला है, मेरे भाई है, मेरे बेटे है, मेरी बहनें है, मेरा आलिम है, मेरी मस्जिद है? ये कौन कह रहा था? ये वही कह रहा था जिसको आज बीजेपी का एजेंट कहते हो, ये वही कह रहा था विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के, अखिलेश यादव जी तुमने हमारे कबीले में आग लगाई है, तुम जिम्मेदार हो अगर मुजफ्फरनगर जला है। जो ये आवाज उठा रहा था उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब था, वो 20 पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो आपका बेटा था, वो आपका भाई था। जब चल रहा था वो बोल रहे थे, वो लड़ रहे थे। लेकिन पूछो ईमानदारी से, अगर किसी भगवान
भगवान को मानते हैं सुधाकर भैया, अगर किसी देवता को मानते हैं सुधाकर भैया, उनसे पूछो। अगर झूठ बोलेंगे, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हम विधानसभा की वीडियो आपको दिखाएंगे। जब मेरा नेता बोल रहा है, मेरा सियासी इमाम चीख रहा है, मेरी मस्जिदें जलाई गई है, मेरे बच्चों को मारा गया है, मेरी बेटियों को लूटा गया है। जब डॉक्टर अय्यूब ललकार रहा था तो यही सुधाकर सिंह कह रहे थे, ऐ डॉक्टर अय्यूब, तुम आतंकवादियों की हिमायत करते हो। ये हमारे बच्चों को, हमारे आलिमों को ये आतंकवादी बता रहा था विधानसभा में। अगर किसी को झूठ लगे तो उठाओ, हमारे पास वीडियो मौजूद है, जो चाहे हमसे ले लेना। हम घोसी में रहते हैं, घोसी में रहेंगे, जिसको चाहे हमसे ले लेना, हम आपको सबूत दिखाएंगे। क्योंकि हमें आपसे डर नहीं है, हमें सुधाकर सिंह का डर नहीं है, हमें अपने रब का डर है। अगर झूठ बोल के जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। चुनाव तो आएगा चला जाएगा, लेकिन सोच के देखो मेरे दोस्तों, आज की तारीख में आप समझते नहीं हो। अरे चरिंदा परिंदों से सबक ले लो, चींटियों से सबक ले लो। कि आपने नहीं देखा कि जब बरसात होती है, आप देखते हो बरसात के अंदर जब बारिश होती है तो कच्ची जमीन से चींटी और चींटे निकलते हैं। आप सबने देखा होगा जब चींटी और चींटे निकलते हैं, आपने चींटे चलते हुए देखे होंगे तो एक चींटा आगे चलता है, सारे चींटे पीछे चलते हैं। आपने चींटियों को देखा होगा, दीवार पे चलती है, जमीन पे चलती है, लाइन लगा के चलती है। आपने चींटियों के आगे एक रानी चींटी को चलते हुए देखा होगा। आपने चींटियों की लाइन में किसी चींटी को नहीं देखा होगा। आपने चींटियों छोटों के लाइन में किसी चींटी को नहीं देखा होगा। आपने बंदरों के साथ में कुत्ते को नहीं देखा होगा। आपने शेर के साथ में जंगल भरके को नहीं देखा होगा। आपने बकरी के साथ में भेड़िए को नहीं देखा होगा। आप देखो कि चींटी चींटी के साथ है, कुत्ता कुत्ते के साथ है, बिल्ली बिल्ली के साथ है, बंदर बंदर के साथ है, शेर शेर के साथ है, यादव यादव के साथ है, चमार चमार के साथ है, ठाकुर ठाकुर के साथ है, बनिया बनिया के साथ है, पंडित पंडित के साथ है, और ये मुसलमान थोड़ा 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 सबके साथ। कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अरे परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमने जिंदगी गुजार दी किराए के मकानों में। आओ अपना मकान बन रहा है, इतना शानदार अल्लाह ने मौका दिया है। इस चुनाव से न किसी की सरकार बनेगी, न किसी की सरकार बिगड़ेगी। बताओ ईमानदारी से, अगर साइकिल जीत जाएगी, 100 से ज्यादा विधायक अखिलेश भैया के पास है, 100 से ज्यादा गुलाम अभी बैठे हैं। एक और आपके यहाँ से जीत के चला जाएगा, 102 हो जाएंगे, 1 से 5 हो जाएंगे। बताओ औकात किसी की रहेगी? कोई जीते इस चुनाव में, कोई हारे इस चुनाव में, लेकिन सरकार भाजपा की रहनी है। मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे, कोई हटाने वाला नहीं है। मुसलमान सोच रहा है अगर साइकिल जीत जाएगी, मेरा अब्बू मेरा फूफा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा। इतना डंडा पड़ेगा पिछवाड़े पे, इतना डंडा पड़ेगा। अभी आजम खान का हशर हुआ है, अभी तेरा भी होने वाला है। याद रखना, तेरी भी बारी आने वाली है। आप सोचते नहीं हो, जो आपकी बस्ती में रहता हो, जो पूरे घोसी में रहता हो, इतना ही बड़ा समाजवादी का नेता हो, ईमानदारी से बताओ कि आजम खान से बड़ा हो सकता है? कि आजम खान से बड़ा हो सकता है? आजम खान मुलायम सिंह यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले थे। आजम खान साहब सेकंड मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज देखो आजम खान जेल में, आजम खान का बेटा जेल में, आजम खान की बीवी जेल में। बताओ कोई बोला? 5 करोड़ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास एक्टिव है, 5 करोड़। अगर 1 करोड़ मैदान में निकाल दिए होते सरकार के खिलाफ, अगर रोड पे निकल गए होते, अगर सड़कों पे आ गए होते, तो आजम खान का आज ये हशर न हुआ होता जो आज हुआ है। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी, समाजवादी नहीं चाहती थी। आपने बिहार में देखा, लालू यादव मरते मरते जेल काट रहे हैं। अगर आजम खान साहब, उनका बेटा, उनकी बीवी जेल न गई होगी, अखिलेश भैया जेल में चक्की पीसी कर रहे होते। अगर वो जेल न गए होते, आज की तारीख में डिम्पल भाभी जेल में गई होती। मुलायम सिंह यादव जी दुनिया में नहीं, उनको क्या कहूँ, वो भी जेल में होते। उन्होंने सौदा कर दिया, पूरा यादव परिवार बचा लिया और आजम परिवार को जेल के हवाले कर दिया। क्या जवाब दोगे मेरे भाई? कौन से समाजवादी के नेता हो, कौन से साइकिल के नेता हो? तुम्हारा जमीन कहाँ मर गया है? तुम्हारा गैरत कहाँ चली गई है? आखिर सोचते क्यों नहीं हो? इस वोट से न किसी की सरकार बनेगी, न किसी की सरकार बिगड़ेगी। कोई जीते कोई हारे, सरकार योगी जी की रहेगी। कोई जीते कोई हारे, मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे। भाजपा की सरकार 2027 तक चलेगी। लेकिन अगर 20 पार्टी को वोट दे दिया, अल्लाह करिश्मा करने वाली जात है। जब हम यहाँ पे आए थे, हमसे कहा गया 85,000 मुसलमानों का वोट है। हमने जब वोटर लिस्ट निकलवाई तो 1,26,000 मुसलमानों का वोट है। 1,26,000। 55 सिंह में दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, 35,000 में सुधाकर भैया लड़ रहे हैं, 1,26,000 में आपका बेटा सनाउल्लाह अंसारी चुनाव लड़ रहा है। बताओ कौन जीतेगा? बताओ कौन जीतेगा?
जाओ। मैं ठाकुर प्रदेश के अंदर मैंने कहा अगर 1,26,000 में 80% वोट दे दो 1 लाख वोट पड़ेगा, 70,000 65,000 जिस पे आ जाएंगे और चुनाव जीत के एमएलए हो जाएगा, विधायक हो जाएगा। तुम अपने वोट को एक तरफा तो डालो, अपने वोट को एक जगह तो डालो। आप सोचो 1,26,000 वोटों का मालिक आज हाथ में भीख का कटोरा लेके भीख मांग रहा है। 1,26,000 एक तरफा डाल दो। अल्लाह की साथ करिश्मा करती है। अल्लाह की साथ ने करिश्मा किया, अल्लाह ने नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह ने करिश्मा किया, 313 की जमात मैदान बद्र में हजारों पे गालिब आ गई। अल्लाह ने करिश्मा किया। आप देखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ने 5 तारीख में करिश्मा कर दिया तो आने वाली 8 तारीख को सनाउल्लाह अंसारी इसी घोषी का विधायक बन के जाएगा। ये सब आपके वोट से होगा, ये सब आपके वोट से होगा। आप वोट दोगे तो होगा, वोट नहीं दोगे तो नहीं होगा। इसलिए 5 तारीख को वोट देने से पहले मेरे दोस्तों मुजफ्फरनगर में मरने वाले मुसलमानों को याद कर लेना। अगर सोचते हो कि मेरा मुजफ्फरनगर के मुसलमानों से क्या मतलब है तो जरा सोच के तो देखो, हमारा सबसे मतलब है। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत सारी बातों को खत्म करते हुए मैं आपसे दरखास्त करने आया हूँ, आने वाली 5 तारीख को कोई हारे कोई जीते, एक एक वोट 20 पार्टी को दीजिए, कांच के गिलास को दीजिए। अरे या तो हम जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, या इतने वोट लेकर 2024 में हम लोकसभा में हिस्सेदारी ले लेंगे। ये लड़ाई मेरे भाई हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी लेने की है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करने आया हूँ मेरे दोस्तों, आने वाली 5 तारीख होगी, कांच के गिलास का चुनाव निशान होगा। सनाउल्लाह अंसारी नीचे भी आपका बेटा है, ऊपर भी आपका बेटा है। अरे वहां तो कोई नहीं है, चाहे उधर चले जाओ दारा साहब के साथ, चाहे सुधाकर साहब के साथ चले जाओ, सबका अंजाम एक है, दीनारे जहन्नम। उसका कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन तुमको जो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए 5 तारीख कांच का गिलास 20 पार्टी सनाउल्लाह अंसारी को याद रख लीजिएगा। ये काम जो हम लोग करने निकले हैं, ईमानदारी से बताइए, जितनी बातें हमारे साथियों ने की हमने की, ईमानदारी से बताओ ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं पड़ेगा, हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाओ मेरे भाई। पीछे लोग खड़े डर रहे हैं, किससे डर रहे हो? हाथ उठा दो। अरे अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी से मत डरो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे साथियों को हमें अपने बीच में बोलने का मौका दिया। एक वादा आपने किया है, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो ये रईस कुरैशी बुलंदशहर से आया है चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत सारी बातों को खत्म करते हुए क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। इस शेर के साथ आपसे विदाई लेता हूँ कि राह दुश्वार से जो गुजरो तो खबर कर देना, राह दुश्वार से जो गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में जो उतरो तो खबर कर देना। हम चले आएंगे, कौमें मोहब्बत ठहरी, कभी टूट के बिखरो तो खबर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए बिला ताखीर, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता हमारे बीच में।